یہ کہانی ہے بریلی میں رہنے والے رئیس کی، جس کے 2 بچے تھے۔ ایک کا نام راہل اور بیٹی کا نام ریشما اور ان کی بیگم اسنارا۔ رئیس بہت ہی محنتی اور ایماندار تھا اور وہ درزی کا کام کیا کرتا۔ جیسے تیسے ان کے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے سردی کا موسم آتا ہے اسے کام ملنا بند ہو جاتا ہے۔ ارے بیگم اسنارا، ایک کپ چائے تو پلا دیجیے، بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اور یہ دونوں بچے کہاں چلے گئے؟ وہ بچے باہر ہیں، میں ابھی بلاتی ہوں۔ راہل، ریشما، چلو اندر آؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، سردی لگ جائے گی آپ لوگوں کو۔ امی جان آج تو باہر بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ہاں میرے بچوں۔ امی جان ہمیں بھی چائے دے دیجیے۔ ہاں میرے بچوں، آپ کو ابھی دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائے پی کے تو ایسا لگتا ہے جیسے جسم میں جان آ گئی ہو، اور چائے پینے سے تو ٹھنڈ بھاگ ہی جاتی ہے۔ آج مکان مالک آئے تھے، گھر کا کرایہ دینے کی بول کر گئے تھے۔ گھر کا کرایہ نہیں دیا تو ہمیں گھر خالی کرنا ہوگا۔ اگر ہم گھر سے بے گھر ہو گئے تو اس کڑاکے کی سردی میں ہم بچوں کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ ہاں، یہی فکر تو مجھے کھائی جا رہی ہے۔ ایک تو ٹھنڈ میں کام دام بالکل بند ہو جاتا ہے، گھر کا کرایہ بھی تو ہے، اور یہ سلائی مشین بھی کرائے کی ہے۔ آپ دکان پر جا کر کام کیوں نہیں کرتے؟ دکان پر بھی ابھی جگہ نہیں ہے کہیں بھی، اس لیے مجھے بھی مجبوراً گھر پر ہی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ یا اللہ رحم فرما ہم غریبوں پر۔ اگلی صبح رئیس کا بچہ کہاں پر گیا؟ تو گھر کا کرایہ کیا تیرا باپ بھرے گا؟ رئیس دوڑتا ہوا باہر آتا ہے۔ جی مالک کے بچے، گھر کا کرایہ کیا تیرا باپ بھرے گا؟ مجھے آج کے آج اپنے گھر کا کرایہ چاہیے، نہیں تو شام تک یہ تیرے بچوں کے ساتھ تجھے گھر سے نکال دوں گا، یاد رکھنا۔ یا اللہ، یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہے۔ اللہ ہمارے پریوار پر اپنی رحم ادا فرما۔ گھر پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہم بیچ کر قرض ادا کر سکے۔ یا اللہ اپنا رحم فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم انہیں لے کر کہاں جائیں گے؟ آپ کچھ جلدی کیجیے۔ میں اپنے مالک کے پاس جاتا ہوں، جہاں میں کام کرنے جاتا ہوں، ان سے شاید کچھ مدد مل جائے تو اچھا ہوگا۔ رئیس جہاں سلائی کا کام کرتا تھا وہاں اپنے مالک کے پاس جاتا ہے۔ السلام علیکم مالک۔ یا رئیس بھائی، وعلیکم السلام۔ مالک، مجھے کچھ پیسے ادھار چاہیے، کچھ دن کے بعد میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا۔ ارے یار، کام دھام تو ویسے ہی نہیں ہے، تمہیں تو پتا ہی ہے یہاں اپنا پیٹ پالنا بھی مشکل پڑ رہا ہے، تو آپ کو پیسے کہاں سے دوں؟ مجھے کچھ پیسے کر دیجئے، نہیں تو میرے گھر سے مجھے نکال دیا جائے گا۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں اس ٹھنڈ میں لے کر کہاں جاؤں گا؟ یہ تمہاری پرابلم ہے، میری نہیں۔ کام کرو گے تبھی پیسہ ملے گا۔ رئیس نراش ہوتا ہوا گھر پہنچتا ہے۔ کیا ہوا جی، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ پیسوں کا کوئی انتظام نہیں ہو پایا۔ آپ اپنے مالک کے پاس گئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کام تو ہے ہی نہیں، تو پیسے کس بات کے؟ آپ نے بولا نہیں کیا کہ میں ادھار چکا دوں گا؟ ہاں، سب کچھ کہا، اللہ کا واسطہ بھی دیا، لیکن آج کے دنیا کے لوگ اتنے غمظرف ہو گئے ہیں، ان کے دل میں رحم نہیں ہے۔ دور بیٹھے دونوں بچے ساری باتیں سن رہے تھے۔ بابا جان، آپ فکر نہ کریے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک ٹھاک کر دیں گے۔ ہاں بیٹا، ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ چلو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، نماز کا وقت بھی تو ہو گیا ہے، آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ سب لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے گھر ہونے سے بچا لے۔ شام کے وقت وہ مکان مالک ان کے گھر پہنچتا ہے۔ ارے رئیس کا بچہ، کہاں ہے تو؟ پیسوں کا انتظام ہوا یا نہیں؟ مالک، مجھے کچھ مہلت دے دیجیے، میرے یہاں مہلت کچھ نہیں ملتی۔ میں بنیا آدمی ہوں، بنیے کو صرف روکنے سے مطلب ہے، کسی کی ہمدردی سے نہیں۔ اللہ کے لیے ہمیں کچھ وقت اور دے دیجیے۔ کوئی وقت نہیں ملے گا۔ اے گنڈو، کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو؟ نکالو ان کا سامان گھر سے باہر۔ اللہ کے واسطے رک جائیے، ایسا نہ کیجیے، ہم سردی میں کہاں جائیں؟ وہ مالک اور گنڈے ان کی کوئی بات نہیں سنتے اور سارا سامان باہر دے دیتے ہیں۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ اللہ ہمارے اوپر اپنی آزمائش کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا صبر دیکھتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس سفر میں کامیاب ہونا ہے۔ ہاں بابا جان، آپ نے ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ مشکلات انہیں دیتا ہے
जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी कि अल्लाह ताला हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हाँ मेरे बच्चों। अम्मी जान आप ना रोया कीजिए, आपको देखकर हमें भी रोना आ रहा है। ठीक है बच्चों, तुम्हारी अम्मी जान अब नहीं रोएगी। वो सब वहाँ से चले जाते हैं और कई ऐसी जगह ढूंढने लगते हैं जहाँ उन्हें सर छुपाने की जगह मिल सके। तभी उन्हें सड़क के पास एक पेड़ नजर आता है और वो सब वहाँ रुक जाते हैं। बाबा जान, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ पापा जान, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। रईस इधर उधर काम की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। वो थक हार कर वापस आ जाता है। बाबा जान, क्या हुआ? कुछ काम मिला? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मुझे कोई काम नहीं मिला और नहीं मैं कुछ खाने का इंतजाम कर पाया। कोई बात नहीं बाबा जान, आप उदास ना हो, हम पानी पीकर काम चला लेंगे। वो सब पानी पीकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि ठंड के कारण उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। पूरी रात पेड़ के नीचे उन्हें गुजारनी पड़ती है। पूरा परिवार बेबसी के आलम में दिन काट रहा था। अगली सुबह, अरे आपके भाई के यहाँ चलते हैं ना, कासिम भाई के घर। नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते। भाभी जान ने मुझे पिछली बार बहुत जलील किया था। गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। मेरा भाई अमीर है और एक भाई जो खाने के लिए एक रोटी के लिए तरस रहा है। रईस रात दिन अपने परिवार के बारे में सोचता रहता है। अपने परिवार का ये दुख वो सहन नहीं कर पाता और जान देने का फैसला कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर देना। बाबा जान, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया। बाबा जान, अल्लाह के लिए ऐसा ना कहिए। तभी अचानक रईस चलती हुई गाड़ी के नीचे आ जाता है और एक झटके में कार उसे उड़ा देती है। ये देखकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। या अल्लाह, ये क्या हो गया? आप हमें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? मुसीबत आई थी तो क्या हुआ? मुसीबत तो अल्लाह ताला दूर कर देते, लेकिन आप हिम्मत हार गए। ऐसा क्यों किया आपने, बताइए। बाबा जान उठिए ना। अम्मी जान बाबा से कहिए ना उठ जाए। मुझे जलेबी लाकर कौन देगा? हाँ बाबा जान उठ जाइए, मुझे प्यारी सी गुड़िया लाकर कौन देगा? अब आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, गुड़िया और ना ही जलेबी। अल्लाह के लिए एक बार उठ जाए। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? आपने क्यों ये सब कर दिया? मुझे क्या पता था हमारा बोझ आपको इतना गमगीन कर देगा। क्या आप अपनी जान ही गवा देंगे? या अल्लाह रहम फरमा। ऐसे ही बेबसी के आलम में उनकी जिंदगी गुजर रही थी। अम्मी जान, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। मैं चलते चलते थक गया हूँ। बस कुछ दूर और चलो बेटा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ढाबा नजर आता है। अम्मी जान, ये ढाबा है, यहाँ कुछ खाने के लिए लेकर आइए ना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ, लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए भीख भी मांग लूंगी। अम्मी जान ऐसा ना करिए, हमारे लिए ना मांगिए, हम भूखे ही रह लेंगे। माशाल्लाह, तुम जैसी औलाद अल्लाह सबको अदा फरमाए, जो कई दिनों से भूखे रहकर भी अपनी अम्मी जान की इज्जत करती हैं। उसनारा ढाबे के मालिक के पास जाती है। मालिक, मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे क्या कुछ रोटी मिल सकती है? और मैं बदले में आपका कुछ काम कर दूंगी, जैसे कि बर्तन धोना। हाँ, मेरा काम तो तुम कर सकती हो और भी बहुत कुछ कर सकती हो। तुम्हें रोटी भी दूंगा और पैसे भी, बस तुम्हें कुछ कर दो। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए आपकी रोटी। अरे जाती कहाँ है मेरी जान? या अल्लाह, मेरी हिफाजत अदा फरमा। बच्चों भाग जाओ यहाँ से। पकड़ लो इन दोनों बच्चों को भी। वो गुंडे दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं। हमारी अम्मी जान को छोड़ दो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का कहर नाजिल होगा, तुम लोगों पर जमीन के अंदर समा जाओगे। या अल्लाह, मेरी हिफाजत अदा फरमा। या अल्लाह, मेरी अम्मी जान की हिफाजत अदा फरमा इस जालिम से। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मेरी अम्मी जान को। छोटा सा है लेकिन इसके तेवर तो देखो। अगर मैं बड़ा होता तो तुझे 2 गज जमीन में घुसेड़ देता। छोड़ दे मेरी अम्मी को। या अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इन जालिमों को सबक सिखा सकूं। आज मेरे बादल और बादशाह होते तो इन जालिमों को सबक सिखा देता। या अल्लाह, मेरे बादल और बादशाह को भेज दे मेरी अम्मी जान की हिफाजत के लिए। तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है।
तभी अल्लाह ताला बादल और बादशाह को भेजते हैं। बादल और बादशाह अल्लाह की नूरानी शक्ति लेकर उन जालिमों पर अपनी शक्ति से हमला करते हैं और उन्हें भस्म कर देते हैं। ओ बचाओ, हमें बचाओ, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अब हम किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं करेंगे। या अल्लाह अपना रहमत फरमा। ताला अपना रहम फरमाकर बादल और बादशाह के जरिए जालिमों को खत्म कर देते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखा अम्मी जान, हमारे बादल और बादशाह ने एक बार फिर हमें बचा लिया। हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे बादल और बादशाह तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी हिफाजत करते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे बादल और बादशाह, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अल्लाह का घर कैसा है? मरने के बाद हमें भी अल्लाह के घर जाना है, हम वहाँ जरूर मिलेंगे। इतना कहकर बादल और बादशाह फिर अल्लाह के घर चले जाते हैं। चलो बच्चों, अब हम भी चलते हैं। तुम्हारे बाबा मरते समय तुम्हारे चाचा जान का पता देकर गए थे, हमें वहाँ जाना होगा। ठीक है अम्मी जान, मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत ठंड भी लग रही है ना। एक दूरी पर शेल्टर नजर आ रहा है, हम वहीं चलकर रुकते हैं। वो तीनों शेल्टर के पास जाते हैं। अम्मी जान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए कुछ कीजिए ना। ठीक है बेटा, अभी मैं तुम दोनों के लिए कुछ करती हूँ। उसी समय उसनारा आसपास पड़ी हुई लकड़ियों को जमा करती है और आग जला देती है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि कुछ समय के लिए हमें ठंड से बचने के लिए आग तो नसीब हुई, लेकिन सर्दी इतनी तेज थी कि बर्फबारी होने लगती है, जिससे कि आग बुझ जाती है। या अल्लाह रहम, इस कड़ाके की सर्दी में रहना कितना मुश्किल होता है। हम गरीबों का इम्तिहान मत ले, हम पर रहम फरमा। तभी आसमान में एक चमक उठती है, चांद से निकलकर बादल और बादशाह आ रहे होते हैं। देखो अम्मी जान, बादल और बादशाह फिर से आ रहे हैं। अब क्या हुआ? अब तो हमें नहीं पुकारा था। हाँ मेरे बच्चों, लेकिन अल्लाह ताला सब जानने वाला है। शायद अल्लाह ताला ने फिर से हमारे पास इन्हें भेजा है। बादल बादशाह, आप लोग फिर आ गए। हम अल्लाह ताला के हुक्म से आए हैं। मेरे नेक बंदे गुर्बत में है, उनकी मदद की जाए, तुम्हें सर्दी से बचाया जाए। अल्लाह ताला आप लोगों से बहुत खुश है। अल्लाह ताला ने आपके सब्र को अच्छा मकाम अता फरमाया है। आप अल्लाह ताला के नेक बंदों में से हो। बादल और बादशाह बुझी हुई लकड़ियों को अपनी शक्तियों से जला देते हैं और बुझी हुई लकड़ियों में आग लग जाती है, जिससे वह सर्दी से बच जाते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो हमें इस मुश्किल हालत में देखकर हमारी मदद के लिए तुमने बादल और बादशाह को भेज दिया। या अल्लाह, तू बड़ा ही रहम और गफूर है। तू गरीबों की सुनने वाला है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तू सबकी सुनने वाला है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सबकी सुनने वाला है तू। ये लीजिए, ये लजीज खाना। बादल और